और ऑल ओवर इंडिया से जैसे डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया। और इसका ऑडिशन हुआ। ऑडिशन में मैंने भी पार्ट लिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। throughout the journey. But there are a lot of girls who like they don't go to this place where you are because their parents just stop them completely because they think that their children will wear those kind of dresses and there will be a talk in the society and all. What do you like to say to the parents? Just want to say that it is a very old stories where we say that okay, you have to wear these dresses and all. It's very comfortable, and it's not only you who is going to go through with all this. Everybody as a participant, you will see that they are so comfortable, and this pageant actually basically teaches you the way you live. So it is my request to all the girls that you please come out of your comfort zone. You have to come out of it. You cannot say that my parents are saying no, you have to come out of your comfort zone. I would like to say that. Whenever it comes to these kind of shows, Miss India or Miss World, people always has this thing in this mind, which is a myth for me, Yes. that beauty, the beauty which is physical beauty, is all that matters and not inner beauty or any other thing. So, Okay. what you would like to say in that point? So there is a difference between fashion, modeling, and pageant. In modeling, you will see that the models they go and there is no expression, right? But in a pageant, you really have to showcase as a person what you are, both from inside and outside, whether you are helpful or not, as a mother, as a wife, how you are, as a citizen, how you represent, how you take care of the people, how can you motivate people, how enthusiastic you are. It's not about the external beauty, it's the beauty of your mind and soul. What would you like to say the girls who are willing to participate in this? I would definitely encourage that please go forward and please participate in such pageant, because they will it will increase your confidence level and your way of living. You will not lead a conventional life after participating in such a pageant. Being in being participating like participating in such events or such shows, it like bothers your family life, your personal life, and then you have to like maintain yourself throughout the journey. Yes, How yes. you like you know take care of all of it together, See, make sure that all are balanced. okay, so I just want to tell you something, that looking after your own self or maintaining your own self, it is not a one day job. It's a continuous process. If you have any skill in yourself, you should develop that skill every day. Suppose I have learned any skill during my school days, I should continue with it. I should not stop it because of my family pressure or because I've got married. So that's important. You should continue working on your own self. What was that one thing that motivated you to participate in this? Just I felt that I am out of the box, so I can do it. Thank you so much, ma'am. Okay, thank you. बहुत tough था फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लेडीज थे, बहुत वर्सेटाइल, बहुत एडवांस्ड, और ऑल ओवर इंडिया से जैसे डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया। और इसका ऑडिशन हुआ। ऑडिशन में मैंने भी पार्ट लिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया, कॉन्फर्मेशन मिला। उसके बाद हमारा 1 महीने का लगभग बहुत सेशंस भी चला ऑनलाइन। सेकंड रनर अप में अवार्ड पाके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि मैं धनबाद का नाम रोशन कर पाई हूँ, अपना स्टेट का नाम रोशन कर पाई हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कितने प्रतिभागी थे टोटल उसमें? 36 पार्टिसिपेंट्स थे ऑल ओवर इंडिया। कहाँ से प्रेरणा मिला मैम, ये बताइए, किनसे मिला है? प्रेरणा, जैसे मैं कभी प्रोफेशनल मॉडल हूँ नहीं, लेकिन जैसे मैं कॉलेज में थी 2007 में, तो वहाँ पे जैसे मिस फ्रेशर्स का कॉन्टेस्ट हुआ इसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा मिनी वर्जन था वो, तो जिसमें यही सारे राउंड्स थे। तो उसमें मैंने मिस फ्रेशर्स का टाइटल जीता था। तो तब से ये एक स्पार्क मेरे अंदर काम करता था कि ऐसे अगर कुछ होगा तो मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगी। लेकिन मैंने कभी इतना सोचा नहीं था, क्योंकि मेरा
जैसे मैं पढ़ाना, मेरा डांस क्लासेस, इसको लेके मैं बहुत बिजी रहती थी। धनबाद में कहाँ से पढ़ाई की है? मैं कार्मल स्कूल से पढ़ाई की हूँ। फैमिली बैकग्राउंड बताइए क्या है? फैमिली बैकग्राउंड। ओके। तो मैंने अपना बचपन स्कूलिंग मेरा कार्मल स्कूल धनबाद से हुआ। उसके बाद मैं कैलकटा गई। कैलकटा जाने में मैं कोयलान कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की है। करने के बाद फिर वहाँ पे मैं हायत रीजेंसी में बहुत दिन काम की। करने के बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को धनबाद वापस आना पड़ा, और यहाँ पे मैं एक ऑटोमोबाइल डीलरशिप में बहुत दिन काम की। करने के बाद लेकिन हमेशा मेरे को मन होता था कि मैं और पढूं, तो मैंने अपना मास्टर्स भी किया, डांस में भी मास्टर्स किया। करने के बाद स्कूल में थी, डिनोबली स्कूल में 12 साल लगभग। तो उसी बीच में ये मन हुआ कि ये पेजेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। फैमिली कितना सपोर्ट किया? मेरे को फैमिली का ही सपोर्ट मिला है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। धनबाद की बेटियों को सक्सेस के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपना स्किल्स को ज़रूर डेवलप करें। आप घर में बैठते हैं, आप खाना बनाते हैं, आप अपना बच्चा को पालते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल मेरे को ये लगता है कि आपको अपना स्किल्स डेवलप करना चाहिए और आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपका? फ्यूचर प्लानिंग 1 साल मैं अभी कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक नेशनल टाइटल विनर हूँ। 1 साल बाद मेरा इच्छा है कि मैं वर्ल्ड कंपटीशन में जाऊँ। ठीक। अपना फुल इंट्रोडक्शन दे दें। अंकिता बैनर्जी, मेरा नाम अंकिता बैनर्जी है और मैं धनबाद में रहती हूँ। मेरा एक डांस क्लास है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे फैमिली है, और मैं एक बहुत हैप्पी मदर हूँ। और थैंक यू। ओके। वैसी लड़कियां जो इस वक्त ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयारी कर रही होंगी, उनके लिए आपका क्या सलाह होगा? आप अपना काम मन से कीजिए। आप, मेरे को यही कहना है कि यू शुड वर्क हार्ड। आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। उसमें आपको कभी भी ये नहीं महसूस होना चाहिए कि मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि ये कंसिस्टेंट एफर्ट है, सालों का एफर्ट है। कोई ब्यूटी पैजेंट में जीतना या किसी भी स्पेयर पे जीतना ये एक दिन का काम नहीं है। आपको अपना फिजिक, अपना मन हमेशा अच्छा रखना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए खुद को तैयार रहना चाहिए, खुद को रखना चाहिए।